Good evening everyone, good evening to all of you. Most welcome to your own channel राइट ऑन। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 5-6 ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 5-6 ਵੀ ਨਹੀਂ 4-5 ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ MCQs ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 100 MCQs ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ 100 MCQs ਦੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 100 MCQs ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਲੈ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸਾਰੇ 100 ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਬਟ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕੁਝ 7 ਜਾਂ 8 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਇਨਫ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨੇ, ਟੌਪਿਕ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। LPP ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਮੈਂਟ ਮੈंने ਦੇਖੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ तो 35 क्वेश्चन हो गए सी। 36 क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 36 एंड इस दे विच की पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट। इन्हां दे विचों किहड़ी एक स्टेटमेंट है। सो देख के पता लग रहा है मे यू लीव लॉन्ग ये ना ही ट्रू है ना ही फॉल्स है। ये तो ब्लैसिंग्स हो गई कि हाँ जी थोड़ी जो उम्र है वो लंबी हो गई है ना। तो मतलब मे गॉड ब्लैस यू ये भी अपने को ब्लैसिंग्स हो गई। द सन इज अ स्टार। ठीक है, ये हो सकता है ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ट्रू होएगी ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫੋਲਸ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੋਲਸ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫॉर ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਥ ਈਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਥ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਲਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫॉर ਯੂਨੀਵਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫੋਲਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਰਾ मतलब फीलिंग्स ਨੂੰ एक्सप्रैस किया जा रहा है विच इज़ नॉट राइट। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट नहीं हैगी। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखो जी की दिता होया द नेगेशन ऑफ द पैरिस इन फ्रांस एंड लंडन इज़ इन इंग्लैंड। ਇਹਦਾ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਨ ਫਰਾਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਂਡ ਲੰਡਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਨ ਫਰਾਂਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੀ, ਉਹ ਪੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਨ ਫਰਾਂਸ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਿ ਲੰਡਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਵਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀ ਡਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਿਉ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਆਂਸਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪੈਰਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਨ ਫਰਾਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਰਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਨ ਫਰਾਂਸ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਫਰਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੈਰਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਨ ਫਰਾਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ और लगेगा तो बिल्कुल और लगेगा। ठीक है, ये भी की होएगा नगेशन होएगा। तो लंडन इज़ इन इंग्लैंड मतलब लंडन इज़ नॉट इन इंग्लैंड। तो क्लीयर है कि यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर की होएगा जी बी ऑप्शन होएगा। क्लीयर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਇਫ ਇਟ ਰੇਨਸ आई शैल गो टू स्कूल। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जेकर ये रेन होएगा है ना, इट रेन्स, ये मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट है। और आई शैल गो टू स्कूल ये मेरे को की है सेकेंड स्टेटमेंट है। और मैंने दिता की होया पी इंप्लाइज क्यू। पी इंप्लाइज क्यू का मतलब की होंगे कि अगर बारिश हो रही है तो मैं स्कूल जावांगा। इफ इट रेन्स देन आई विल गो टू स्कूल है ना। तो
ਇੰਪਲਾਈਜ਼ P ਇੰਪਲਾਈਜ਼ Q। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਗੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਗੇਸ਼ਨ ਆਫ P। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਗੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਨਗੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ P ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਂਸਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ P ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ, P ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਰੇਨਸ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ C ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਰੇਨਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਰੇਨਸ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਗੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਗੋ ਟੂ ਦ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਨੋਟ ਗੋ ਟੂ ਦ ਸਕੂਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ B ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, B ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखो जी की है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन स्टेटमेंट। इन्हों के विचों किहड़ी एक ओपन स्टेटमेंट है। कहने का मतलब सिंपल कि स्टेटमेंट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट का मतलब की हुंदा आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। ठीक है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये तो तुसीं ऑर्डर लगा रहे हो, दैट इज़ नॉट रोड। गुड मॉर्निंग टू ऑल, ये ट्रू फॉल्स तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, गुड मॉर्निंग तो विश है, विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, ये भी ट्रू फॉल्स नहीं हो सकता। एक्स इज़ अ नैचुरल नंबर, हुण जां तां एक्स नैचुरल नंबर हो सकता है जां नहीं हो सकता, दो ही गल्लां ने। तो ओबवियसली इहदे विच राइट आंसर किहड़ा होएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਨਾਈਟ ਸੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਟ ਫਿਨਾਈਟ ਸੈਟ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਈਦਰ ਟਰੂ ਆਈਦਰ ਫੋਲਸ, ਹੈ ਨਾ। 8 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ और फॉल्स। दोनों के विचों कोई एक कंडीशन होएगी, जा ही सही है या गलत है, और यूनीवर्स वास्ते ही होएगा। विच वेयर आर यू गोइंग, तो क्वेश्चन मार्क आ गया कि तुसीं कित्थे जा रहे हो, है ना। तो ये स्टेटमेंट नहीं है। तो एक तरीके नाल इस क्वेश्चन का आंसर की होएगा, सी ऑप्शन। लास्ट अपन की पूछा द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, कि सारे ही ट्रायंगल के जोड़े इंटीरियर एंगल्स ने उन्होंने जो सम है वो मैंने कितना दिता होया, 180 डिग्री दिता होया। तो ये भी आइदर ट्रू है आइदर फॉल्स है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखो जी, नगेशन ऑफ दिस। हुण इसका नगेशन फाइंड करना है। ध्यान नाल देखो, इत्थे जो आ वाली स्टेटमेंट है ये मेरे को एक स्टेटमेंट है और ये मेरे को दूसरी स्टेटमेंट है। अपन की गिवन है P एंड Q, P एंड Q गिवन है। इसका नगेशन फाइंड करोगे तो मेरे को नगेशन ऑफ P और नगेशन ऑफ Q आ जाएगा। मतलब जो इत्थे इक्वालिटी दिती हुई है वो नॉट इक्वालिटी बन जाएगी, विच इज़ राइट, है ना। ये भी आपां नूं दिख रही है। अच्छा फिर इत्थे और है, तो अगर इतने और है तो जी ए ऑप्शन है वह भी कैंसल हो जाती है। दैन इट इज़ क्लीयर कि सी ऑप्शन है, क्योंकि नन ऑफ दीज भी दिता होया तो आप अगे भी चेक करांगे। अगे है नगेशन ऑफ Q, नगेशन ऑफ Q का मतलब की है कि 8 10 तो लैस दैन नहीं है। सो क्लीयरली हियर द राइट आंसर इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो द कंडीशनल, इसका कंडीशनल फाइंड करना है कि ਇਹਦਾ जो आंसर होएगा वो टोटोलॉजी बनता है, फॉल्सी या कॉन्ट्राडिक्शन बनता है। ना ही वो टोटोलॉजी है ना ही फॉल्स है, तो वो आपां नूं हुण ट्रूथ टेबल बनाए बिना पता लगना नहीं हैगा, क्योंकि ये विच सारियां ही ऑप्शनस आपां नूं देखणियां पैणगीਆਂ। तो पहला तो मैं इत्थे P की वैल्यूज़ लै ला, ठीक है जी, और मैं इत्थे Q की वैल्यूज़ लै ला जो कि ट्रूथ टेबल दे विच ही होणगीਆਂ, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, और ये आप किवें लवांगे, 2 बारी ट्रू लवांगे और 2 बारी फॉल्स लवांगे। ठीक है जी, और इत्थे देखो जी पहला तो मैंने दोनों का एंड फाइंड करना है, की होएगा ट्रू होएगा फॉल्स होएगा फॉल्स होएगा फॉल्स होएगा, कोई डाउट ये। ठीक है, क्योंकि एंड दे विच की हुंदा जेकर दोनों ट्रू ने तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज अपने कोल की हुंदा फॉल्स हुंदा। अगर एक भी फॉल्स आ जाता है तो अपने कोल की बन गया P इंप्लाइज, जो भी आपने फाइंड आउट किया सी इंप्लाइज P। हुण ये इंप्लाइज इधर जाएगा, तो मतलब जेकर तो दोनों ट्रू ने, मतलब सेकंड वाला ट्रू है, सेकंड वाला ट्रू है तो ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स ने तो भी अपने कोल की आएगा, ट्रू आएगा। सेकंड वाला ट्रू है तो ट्रू आएगा, और दोनों फॉल्स ने तो भी अपने कोल की आएगा, ट्रू आएगा। देन आई कैन सी सारियां ही ऑप्शंस की ने गियां ट्रू ने। अगर सारियां ही ऑप्शंस ट्रू ने तो अपने कोल की बन रही है, टोटोलॉजी बन रही है, विच इज़ ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕੌਂਟਰਡਿਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੌਂਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ T ਹੈ और Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, F ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। P ਪਹਿਲੀ A ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕਦੇ ਆਪਾਂ, A ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ T F, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਗੇਸ਼ਨ ਆਫ T F। ठीक है,
तो हुण देखो ये मेरे को कितना आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा, और इस मेरे को कितना आ जाएगा ट्रू। ट्रू का नगेशन करोगे कितना आ जाएगा फॉल्स, तो रॉन्ग आ गया है ना, तो फॉल्स आ गया मेरे को। ठीक है, हुण यही चीज़ ये पुट करके देखते हैं, तो मतलब ए ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आप कॉन्ट्राडिक्शन ही फाइंड करनी है, अपना आंसर की आना चाहिए फॉल्स ही आना चाहिए है। ठीक है, तो सैकेंड ऑप्शन के देखो जी कितना आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। ठीक है, नगेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, तो मेरे को कितना बन गया फॉल्स आ गया इतने तक। दोनों का यूनियन करोगे तो कितना आ गया ट्रू, बट मैंने ट्रू तो चाहिए ही नहीं, मेरे को तो सारे आंसर्स की आने चाहिए ने फॉल्स ही आने चाहिए ने, मतलब बी ऑप्शन तो मेरा राइट आंसर हो नहीं सकता। रही गल ऑप्शन सी ऑप्शन के देखो जी ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, जो भी आंसर आएगा वह भी इंप्लाइज फॉल्स। हुण क्लीयर है, अगर सैकेंड वाला फॉल्स है तो फॉल्स ही होएगा। फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स भी मेरे को की होंगे ट्रू होंगे, जो दोनों ही फॉल्स ने दैन आपको सबनों पता है कि होएगा ट्रू होएगा। सो इट इज़ ऑल्सो क्लीयर कि ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो मेरे को जो राइट आंसर होएगा वो ऑप्शन कि होएगी ए होएगी। ठीक है, तो इदा भी जस्ट एक वैल्यू में पुट करके चेक किया जा सकता है आराम नाल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के उपर। क्वेश्चन नंबर 44 की दिता हुआ है द बुलन एक्सप्रैशन, आ जो थानू एक्सप्रैशन दिता हुआ है कहते ही किस दे इक्विवेलेंट होएगा। 44 क्वेश्चन पूछा गया कि किहदे इक्विवेलेंट होएगा। ठीक है, हुण ध्यान नाल देखो, ये पहला तो पहली गल तो इन्होंने की लिखा है नगेशन ऑफ पी क्यू। ठीक है, हुण इसनूं तुसीं ट्रुथ टेबल बना के भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक बार इसनूं इदां ही सोल्व करके देखने की कोशिश करते हैं। हो गया ठीक है, नहीं ट्रुथ टेबल तो किते गया ही नहीं है ना। चलो, तो हुण इसनूं जेकर आप ध्यान नाल देखिए, अगर मैं आवला नगेशन अंदर लै जावां तो मेरे को की बनेगा नगेशन ऑफ पी, नगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, और ये चीज़ बन गई मेरे को इधर मेरे को की है नगेशन ऑफ दिस। सिंपल, जेकर आप ध्यान नाल देखिए नगेशन ऑफ पी इस भी है, नगेशन ऑफ बी इस भी है, तो विद रिजल्ट आप ईजिली ये गल कह सकते हैं कि इसनूं मैं कुछ इस तरीके नाल भी लिख सकती हाँ। इफ़ यू सॉरी इतने अकेला ही क्यों आएगा, मैं थोड़ा इसनूं सही करके लिखदा। हाँ जी, तो इसनूं आप कुछ इस तरीके नाल लिख सकते हाँ, किसी भी चीज़ के नाल उसी नगेशन का तुसीं यूनियन करोगे तो ये तो चीज़ क्लीयर है ना कि थोड़े कोल कुछ मर्जी ला लो, थोड़े कोल ये ट्रू ही आएगा। ठीक है, ये थोड़े कोल ट्रू ही आएगा। चलो आ वैल्यू बन गई हुण तुहाडे कोल है ना, अगर तुसीं इसका ट्रू नाल कड्डोगे तो इसका रिजल्ट थोड़े कोल नगेशन ऑफ पी ही बनेगा। ठीक है, तुसीं कड्ड के देखिया, अगर तुहानूं ये नहीं सही लगता कि नहीं असीं इदां नहीं करना, तुसीं ट्रूथ टेबल बना के ट्रूथ टेबल नाल भी क्वेश्चन आराम नाल कर सकते हो, तो भी थोड़ा आंसर की होएगा डी ऑप्शन ही होएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे उम्मीद है पहला, फिर तुसीं देख रहे होंगे कि राइट आंसर की है, तो चंगी गल है। हुण इहदे विच तां कुछ भी नहीं, इहदा नगेशन कड्डना है तो नगेशन ऑफ पी यह की हो जाएगा डायरेक्शन के चेंज हो जाएगा, नगेशन ऑफ क्यू, तो आई थिंक सो वेरी वेरी ईजी, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 अगेन, क्वेश्चन नंबर 46 इज द सेम, नगेशन ऑफ पी, नगेशन ऑफ क्यू, देन विच ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 सॉरी क्वेश्चन नंबर 47 के देखो जी, अगर पी क्यू आर सिंपल प्रैपोजिशंस, पी की वैल्यू अपन ट्रू दी है, क्यू की फाल्स दी है, एंड फिर अगेन आर की ट्रू दी है, तो ये पुट कर दो वैल्यूज, आंसर आ जाऊगा। देखो नगेशन ऑफ ट्रू, ठीक है, और फॉल्स, उस तो बाद नगेशन ऑफ ट्रू इंप्लाइज ट्रू। पहला तो ये देखो कि सही है कि मैंने पी की वैल्यू हर जगह पर टी ही पुट की, क्योंकि ये चीज़ चेक करनी भी बहुत जरूरी है कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे है इंप्लाइज क्यों। ठीक है, हम नगेशन ऑफ ये मेरे को कि होएगा, ये मेरे को फॉल्स के होएगा, फॉल्स का ये यूनियन कर दो। ठीक है, यदा भी नगेशन करोगे तो कितना आ जाऊगा, फॉल्स आ जाऊगा, इंप्लाइज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, तो क्लियर है कि मेरा आंसर की आएगा, ट्रू आएगा, विच इज़ ए ऑप्शन। ठीक है, वैसे तो कुछ भी करने की लोड़ नहीं सी, अगर थोड़ा लास्ट के ट्रू आ रहा तो थोड़ा आंसर ट्रू ही होना सी, चाहे कुछ भी है, बट स्टिल आपने एक बार पूरा सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 के दिता होया है, इसका नगेशन तुसी फाइंड आउट करना है, किसका नगेशन ऑफ पी डबल इंप्लाइज दिता होया मैनू क्यों। ठीक है, हुण देखो ये की है, ये वैसे तो डायरैक्ट रिजल्ट है। ठीक है, अगर डायरैक्ट रिजल्ट नहीं भी याद रहा, यदा डायरैक्ट रिजल्ट वैसे अपने को ऑप्शन सेव आता है, जो थोड़े याद है दैट इज़ गुड, अदरवाइज अपना जो ट्रुथ टेबल है वो किते भी नहीं गया। ठीक है, बट मेरी ये सजेशन है इसमें एज ए रिजल्ट याद रखो। ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं ट्रुथ टेबल तो है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखो,
कि दिता होया अपने को नगेशन इसका सारे का नगेशन फाइंड करना है। करिए हाँ जी, नगेशन ऑफ पी, ठीक है, और ये मेरे को नगेशन ऑफ क्यू बन जाएगा, विच इज़ वेरी सिंपल। ये मेरे को आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि दो बारी नगेशन करूँगी फिर तो पी नहीं आ जाना है, ठीक है। सो आप देख पा रहे हैं विच ऑप्शन इज़ राइट हेयर, ए ऑप्शन इज़ राइट हेयर, है ना। 49 क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 ਦੇ ਵਿੱਚ negation of P, negation of Q, so negation of P and Q is here, so ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ negation of P and Q, which is option B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 काफ़ी सिंपल ਜਿਹੇ क्वेश्चन ने, इदा ਦੇ ਹੀ क्वेश्चन अपने एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ठीक है, कोई इदा नहीं आता कि काफ़ी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है ही सारे सिंपल ਜਿਹੇ क्वेश्चन, बस थोड़ा ट्रुथ टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ स्पीड है तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ टॉपिक कर सकते हो आराम ਨਾਲ। 3704 ਚ बहुत क्वेश्चन आए सी, ठीक है। चलो 51st क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ देखो जी, 51st क्वेश्चन की दिता होया इफ पी क्यू आर सिंपल प्रैपोजिशंस दैन दिस ट्रू। देखो जेकर पी क्यू आर सिंपल प्रैपोजिशन ने तो दसो जी आह मेरे को ट्रू होएगा। अगर जेकर इसकी वैल्यू ट्रू है तो दसो मेरे को जो पी क्यू आर है कहते जेकर सारे ही फॉल्स होंगे, सो ये तो सानू बाय ऑप्शन करना पैना है, सारे ही फॉल्स लैके देख लो, फॉल्स 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 फॉल्स, मैंने तो क्लीयर है ना, मेरा आंसर फॉल्स आऊगा, ट्रू थोड़ी आऊगा, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन होगी। और ये चीज़ क्लीयर है कि जेकर मेरे को सारियां ही वैल्यूज़ ट्रू हो जाती ने तो मेरा आंसर भी ट्रू आ जाऊगा, तो क्लीयर है कि मेरे को केड़ी ऑप्शन राइट होएगी इत्थे, बी। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो जी की दिता होया negation of P and Q, तो दो बारी negation करोगे P का, इत्थे कल्ले P का negation है तो इत्थे मेरे को P हो जाएगा। हुण इत्थे कल्ले P का negation सी तो कल्ले P ऊपर इंप्लाई होएगा, सारे ऊपर इंप्लाई नहीं होएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 ਦੇ ਵਿੱਚ की दिता होया इसकी जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, दसना है टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, जिथे थोड़े को आ ऑप्शन भी अवेलेबल होंगी है ना, उत्थे आप कोई एक वैल्यू पुट करके नहीं दे सकते, आप इदा नहीं कह सकते कि पी नू आ पुट कर दो या एफ नू आ पुट कर दो, है ना, तो वो आपको यह तो पता लग जाएगा कि टोटोलॉजी है या नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं है, बट आपको ये नहीं पता लगता कि सारियां ही सही होणगियां या नहीं, सारियां ही ट्रू होणगियां या नहीं, तो वो वास्ते तो थोड़ा ट्रुथ टेबल ही बनाना पैना। तो इत्थे आप ट्रुथ टेबल हुण बना लैंदे आ। पी की वैल्यू अपने को की होएगी ट्रू फॉल्स, और क्यू की वैल्यू मेरे को की होएगी ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। सो इत्थे मेरे को की दिता है, सब तो पहले तो मैंने फाइंड करना है P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, मैं तो नगेशन नाल ही लिखदा क्योंकि मैंने इसका नगेशन का मतलब है, ठीक है, तो यदा नगेशन भी मैं इसके नाल ही लिख रही हूँ। पहले तो P इंप्लाइज Q करांगे, पहले दे विच मेरे को ट्रू आ जाएगा, उसका नगेशन मेरे को की होएगा फॉल्स होएगा। P इंप्लाइज Q ट्रू होएगा, इसका नगेशन लिख रही हूँ मैं नाल ही, ठीक है, और ये मेरे को की हो जाएगा ट्रू और ये मेरे को की हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, क्लीयर है जी। उस तो बाद अगर आप गल करिए मैंने चाहिए नगेशन ऑफ P और मैंने चाहिए है नगेशन ऑफ फॉल्स, तो वह नगेशन भी मैं नाल ही लिख रही हाँ, ये सीगा नगेशन ऑफ P और ये है नगेशन ऑफ फॉल्स, ठीक है। तो ये मैं ज़्यादा नहीं समझा रही क्योंकि ये कुछ है ही नहीं समझाने वाला, ट्रुथ टेबल आपको सारे आता है। और दोनों का कंजक्शन की बन जाएगा फॉल्स ट्रू एंड ट्रू। इनू मैंने 2 का नाम देता, इनू मैंने 1 का नाम दिता, और दोनों के मैंने डबल इंप्लाइज लेके चलना है, जो किमें हुंदा है कि जेकर तो दोनों ट्रू ने दैन ट्रू होएगा, जेकर दोनों फॉल्स ने तां भी ट्रू होएगा, जेकर दोनों और ट्रू ने तां ट्रू होएगा। तो ये मेरे को एक ट्रू आ गया, एक फॉल्स आ गया, है ना, तो मतलब ये किहड़ी ऑप्शन सही हो जाती है, हुण सी ऑप्शन सही हो जाती है। मान लो आप कोई एक वैल्यू पुट कर लेंदे तो नहीं पता लगना सी, आप गलत लगा जाते, है ना, तो जिथे आ ऑप्शन आ गई उत्थे ट्रुथ टेबल जरूर बना के देखो। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो जी कि दिता होया P इंप्लाइज Q कैन बी रिटन एज, वेरी ईजी एंड वेरी सिंपल, अपन सारे पता है कि P इंप्लाइज Q किस दे इक्वल हुंदा है, B ऑप्शन दे इक्वल हुंदा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 आ दिता होया आपां नूं, ये कहंदे फॉल्स है, ठीक है। अगर Q ते R दोनों ही फॉल्स ने तो दसो P दी की वैल्यू होएगी, ठीक है, P दी की वैल्यू होएगी अगर दोनों ही फॉल्स ने। पहली गल तो सी ऑप्शन नहीं होएगा, मे बी ट्रू और फॉल्स मे बी वाला नहीं है, जा ट्रू होएगा जा फॉल्स होएगा, है ना, जा तो ट्रू होएगा जा फॉल्स होएगा। आप इदा करते हैं, पहले ट्रू लैके चल पैने फिर फॉल्स लैके चल पैने। अगर मेरे को P की वैल्यू ट्रू है तो मेरे को की बन गया ट्रू, नगेशन ऑफ फॉल्स, क्योंकि आह वैल्यूज़ मैंने दित्तियां हुई हैं, दोनों ही मेरे को फॉल्स ने, ठीक है, तो इस चीज़ में ध्यान नाल रखियो, फॉल्स, ठीक है। हुण क्योंकि अपने को इत्थे तो फॉल्स आ गया, हुण अगर आह वैल्यू मेरे को फॉल्स बनेगी फिर तो मेरे को आंसर ट्रू आ जाएगा, और अगर आह वैल्यू मेरे को ट्रू बनेगी
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆंसर ਫੋਲਸ ਆਊਗਾ है ना। तो देखते हैं की बनता इत्थे मेरे को बन गया ट्रू ट्रू, तो इत्थे तो मेरे को ट्रू बन गया। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स का की हो गया फिर आंसर, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स का आंसर की हुंदा है फॉल्स हुंदा है। ठीक है, तो क्लीयर है कि मैंने तो ट्रू ही चाहिए सी, तो ऑप्शन ए किहड़ी होगी सही होगी। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਟਰੂ ਹੈ। P ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਬਾਈ ਦ ਟਰੂਥ ਟੇਬਲ ਆਲਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਦੋ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਨੇ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਐਫ ਲੈ ਲਈ ਮੈਨੇ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੋਲਸ, तो मेरे को की आंसर आ गया फॉल्स आ गया। एक साइड मेरे को फॉल्स आ गई, दूसरी साइड चेक करो। नेगेशन ऑफ ट्रू का मतलब की हो गया फॉल्स हो गया, नेगेशन ऑफ फॉल्स का मतलब की हो गया ट्रू हो गया, और इसका आंसर मेरे को की आ गया ट्रू आ गया। तो आई थिंक सो दोनों ही इक्वल नहीं आए, तो क्लीयर है कि ए ऑप्शन सही नहीं है। अगर ए ऑप्शन सही नहीं हैगी तो आप बी वाल चलते हैं, बी दे विच भी आप पुट करते हैं पी की वैल्यू ट्रू एंड क्यू की वैल्यू फॉल्स। ठीक है, तो ये पुट करांगे, देखो जी पहले तो इस पुट कर दो, की बन गया ट्रू इंप्लाइज ट्रू। ठीक है, ट्रू इंप्लाइज ट्रू मेरे को की होएगा ट्रू ही होएगा। ठीक है, उसका नेगेशन करोगे तो की आ जाएगा फॉल्स, मतलब एक साइड तो मेरे को की आ गई फॉल्स होगी, दूसरी साइड में नेगेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स नेगेशन फॉल्स, तो ये मेरे को की है सही हो सकता है, बट आप इतने 100% श्योर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो एक बार इसनूं रखते हैं, सी ऑप्शन देखो, डी देखो। ठीक है, तो इसनूं एज अ लंबा जा रहा थोड़ा जा, तो मैं तुहानूं होमवर्क दे देनी है, तो इसका आंसर कमेंट सैक्शन में जरूर दस्सिओ भी की आऊगा, हो जाऊगा आराम नाल वैल्यूज पुट करके। ठीक है, चलो अगे चले। क्वेश्चन नंबर 57, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨਵਰਸ फाइंड करना है इसका। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ फाइंड ਕਰਦੇ ਸੀ। अगर ਤੁਸੀਂ P ਤੋਂ Q ਦਾ ਇਨਵਰਸ फाइंड ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਆਫ P ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਆਫ Q। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਆਫ P ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਆਫ R, ਤਾਂ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਆਫ R ਆਏਗਾ। ठीक है, सो आई थिंक सो इत्थों ही पता लग रहा है कि बी ऑप्शन सही है। आ नहीं हुंदा तो दोनों गलत ही हो गया। ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन हैगी है, तो आप चेक कर लें, यदा नगेशन करांगे तो कितना आ जाएगा पी क्यू, विच इज़ राइट ऑल्सो, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, नगेशन ऑफ द, हुण इसका भी मैंने की करना है, नगेशन फाइंड करना है। नगेशन ऑफ पी ये मेरे को इदा हो जाएगा, और इतने मेरे को हो जाएगा पी लाइक दिस। तो देखो फिर कि ऑप्शन आ जाती है, कुछ नहीं बस नगेशन किया। 58 क्वेश्चन पी क्यू आई थिंक ए ऑप्शन इज़ द राइट, बिल्कुल मैच कर रही है ना। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखो कहती विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द प्रेपोजिशन, कहते इसके इक्विवेलेंट नहीं केड़ी है, नॉट वाली दसनी है। अ रियल नंबर इज़ आइदर रैशनल और इरैशनल, ज़्यादा रियल नंबर रैशनल हो सकता है ਜਾਂ रियल नंबर इरैशनल हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट दे विच अ नंबर इज़ नाइदर रैशनल नॉर इरैशनल, दैट इज़ नॉट रियल। तो कुछ सेम है कि जो नंबर ज़्यादा रैशनल नहीं हैगा, इरैशनल नहीं हैगा, और रियल नहीं हो सकता, तो गल तो वही कही गई है। ठीक है, तो ये तो सही है, इक्विवेलेंट पूछना है आपने। इफ़ अ नंबर इज़ नॉट अ रैशनल और एंड इरैशनल दैन इट इज़ नॉट रियल, कहते अगर नंबर जो है वो अपने को रैशनल भी नहीं हैगा, इरैशनल भी नहीं हैगा, तो वो अपने को रियल नहीं होगा। ये मेरे ख्याल से सेम नहीं लिखता इन्होंने, हाँ बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं हैगा, तो ये भी सही है। इफ़ अ नंबर इज़ नॉट रियल दैन इट इज़ नाइदर रैशनल और इरैशनल। इफ़ अ नंबर, ये भी सही है। अच्छा जी, ये इक्विवेलेंट नहीं है, इफ़ अ नंबर इज़ नॉट अ रैशनल इज़ नॉट रियल। इन्होंने इत्थे की लगा दिता, इत्थे और लगा दिता कि जां तो वो इरैशनल नहीं हैगी, जां वो रैशनल नहीं है।
ठीक है। अपने को दोनों ही कंडीशनस लैके चलांगे, ज़्यादा जड़ा नंबर रैशनल भी नहीं हैगा, इरैशनल भी नहीं हैगा, ठीक है। दा इन्होंने की कह दिता, ये अपने को की हो गया, जां वाली ऑप्शन आ गई कि अगर वो रैशनल नहीं हैगी, इरैशनल हो गई, ठीक है। इरैशनल नहीं हैगी, रैशनल हो गई तो रियल नहीं होगी, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये किहड़ी ऑप्शन अपने को राइट होएगी, बी ऑप्शन राइट होएगी, बिकॉज ऑफ जस्ट एक छोटा जिहा वर्ड जो आपको ध्यान नाल देखना पऊगा, दैट इज़ ऑल, ठीक है। बाकी सारे सेम, ठीक है जी। चलो अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर। 60 क्वेश्चन के दिता होया पी दे दिता, क्यू दे दिता, आर दे दिता, ठीक है। एस भी दे दिता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब जो भी देखो पी दिता होया इट रेन्स टुडे, ठीक है। आई गो टू स्कूल, आई शैल मीट माई फ्रेंड्स, आई शैल गो फॉर अ मूवी। और मैंने लिखे कि दिता है इफ इट डज नॉट रेन, इफ इट डज नॉट रेन तो मतलब की हो गया, डज नॉट रेन तो मतलब नेगेशन ऑफ पी हो गया, क्योंकि इफ दिता होया तो किते ना किते इंप्लाइज भी होएगा, है ना। तो इफ नूं आपां हले रखते हैं क्योंकि ये हाले आपां यूज़ नहीं किया। और दा मतलब की हुंदा, वी ऑल नो दैट दिस वन, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, ਇਹਦਾ भी की हो गया, नेगेशन हो गया, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, इत्थे भी इफ है, तो अगर दोनों ते इफ है तो दोनों ने मिला के इफ बनूगा। खैर आप हाँ पूरे देन आ गया, तो दोनों ने मिला के इफ बनेगा, मतलब दोनों तो मिला के इंप्लाइज होएगा। इफ आई शैल मीट माई फ्रेंड, ठीक है, तो मैं की करांगे अपने फ्रेंड्स को मिलांगे, तो आर मेरे को है। एंड का मतलब आप सारे जानते हैं, गो फॉर अ मूवी विच इज़ एस, यदा भी कोई नेगेशन नहीं है। सो दिस इज़ द राइट आंसर, है ना। तो कि ऑप्शन मैच कर रही है, पहली ही ऑप्शन मैच कर गई, दैट इज़ ए, नो दैट इज़ बी। ओके हाँ, पहली ही ऑप्शन मैच कर गई, क्योंकि ये जो आप नेगेशन बाहर निकालेंगे तो अपने को यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है जी। वेरी वेरी सिंपल, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन के दिता हुआ है वही आ गया, विच इज़ द स्टेटमेंट अपन दिख रहे हैं, ओपन द डोर्स, विच ऑन द पैन, डू योर होमवर्क इज नॉट स्टेटमेंट, डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 अपन दिता हुआ है, कहते दसो की है, कॉन्ट्रडिक्शन है, टोटोलॉजी है। अगेन इट हैज़ मतलब अपन किमें करना पऊगा, ये बिना ट्रूथ टेबल तो अपन नहीं कर सकते, है ना। तो पी ले लें जी आप, खैर सेम जी क्वेश्चन है बट करते जरूर करांगे जरूर। और क्यों ले लें आप, 2 बारी ट्रू होएगा, 2 बारी फॉल्स होएगा, ठीक है, क्योंकि आपां एक बारी पी का नेगेशन कड्ढण की भी जरूरत पैनी है और एक बारी क्यों का नेगेशन कड्ढण की भी जरूरत पैनी है, तो दोनों को कढ़ लें। आफ्टर दैट वी हैव पी एंड क्यू नेगेशन, मतलब यह दोनों, तो मेरे को कितना बन गया, फॉल्स बन गया, फॉल्स बन गया, ट्रू बन गया एंड फॉल्स बन गया। इन्हों आप 1 का नाम दे दें। और मैंने की करना है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, नेगेशन ऑफ पी और क्यू इसमें आप 2 का नाम दे दें। और आ दोनों और दे अपन सबनों पता है, अगर दोनों फॉल्स ने तो ही फॉल्स होएगा। 1 और एंड 2 करना है, इन्होंने दोनों का एंड करना है। और इट इज़ वेरी क्लियर कि सारे ही मेरे को की आ रहे हैं फॉल्स आ रहे हैं, मतलब है मेरे को की होगी, कॉन्ट्रडिक्शन होगी, विच इज़ ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 63 ਦੇ की है, नेगेशन ऑफ द प्रेपोजिशन इफ वी कंट्रोल ग्रोथ वी प्रोस्पर। अगर आप इसका नेगेशन फाइंड करते हैं तो अपने को की होएगा, इफ वी कंट्रोल हों, देखो आप पूरी दी पूरी जो है वो मेरे को की बन गई, एक स्टेटमेंट बन गई। वी प्रोस्पर ए मेरे को की बन गई, सेकेंड बन गई, तो यदा नेगेशन फाइंड करना है। हुण पी इंप्लाइज क्यू है, अगेन वही चीज़ आ जाती है, मतलब नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू। यदा मैं नेगेशन फाइंड करांगी तो मेरे को कुछ इस तरीके नाल आंसर आऊगा और यही मेरा आंसर है। तो लभ लैंने फटाफट की होएगा, ठीक है। चलो तो अपने को किया जाता है, इफ वी कंट्रोल, पहला तो पी दे विच नोट नहीं आऊगा, पी दे उपर कोई नेगेशन नहीं हैगा, तो ए इज़ नोट राइट आंसर, डी इज़ नोट राइट आंसर, बी या सी दे विच कोई एक हो सकता है। एंड सैकेंड दे विच नेगेशन है, वी डू नॉट, है ना। तो देख लें फिर कि आ जाती है, ये भी डू नोट है, ये भी डू नोट है। सो आई थिंक सो अच्छा, फिर इतने इफ वाला कोई केस नहीं है, इतने आप कोई इंप्लाइज नहीं कर रहे, मतलब इंप्लाई वाला कोई वो नहीं है, तो सीधे सीधा आंसर आ जाता है, दैट इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 64 के दिता हुआ है, बुलन एक्सप्रैशन दिता हुआ है कुछ इस तरीके ना, हम थोड़ा जो घुमा फिरा के दे दिता। हुण इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, कहते जोड़ा ए वाला सिंबल है वो इनू शो करता है और जोड़ा ए वाला सिंबल है वो इनू शो करता है। मीनस सिंपल जी गल है, इन्होंने अपन की कहा हुआ है, इन्होंने अपन कहा हुआ है पी
and Q and negation of P or Q if I am not wrong. हाँ बिल्कुल ठीक है, तो यही चीज़ बनेगी। ठीक है, देन द ऑर्डर्ड पेयर ये मेरे को की होएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, यही इसके इक्विवेलेंट है। अब हम थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब एंड लेके चलना है और लेके चलना होएगा एंड या और के कुछ ही। आ वाला जो एक्सप्रेशन है वो अपने को इसके इक्वल है। ये अपन बाई ऑप्शन करना पैना, होर अपने को कोई राह है नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अपने इसकी वैल्यू लैनी है एंड और इसकी वैल्यू लैनी है और, है ना। तो की बन जाऊगा अपने को P एंड Q, नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, ये हुण आपां नूं लैना पैना ट्रू या फॉल्स के अकॉर्डिंग। P की वैल्यू आप ट्रू लै लैंदे आ, Q की वैल्यू आप फॉल्स लै लैंदे आ। ट्रू एंड फॉल्स का एंड जो है ओबवियसली वो फॉल्स ही होंगे। ठीक है, और इतने भी मेरे को फॉल्स और फॉल्स का फॉल्स हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू फॉल्स। तो हुण देख लो राइट हैंड साइड के उपर मेरे को की आंदा, राइट हैंड साइड के उपर भी मेरे को फॉल्स ही आंदा। तो ये ऑप्शन हो सकती है, आप श्योर नहीं हैगी, आप अगे चैक कर लें। सैकेंड ऑप्शन, सैकेंड ऑप्शन इनू आप हले रखते हैं। सैकेंड ऑप्शन के आप दोनों की वैल्यू और लैके चलते हैं तो मेरे को की बन जाएगा P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, काफ़ी लंबा चला जाऊगा, चलो देखते हैं कोई ना। तो अपने को P की वैल्यू ट्रू लै लो, Q की वैल्यू फॉल्स लै लो, की बन जाता है जी। ट्रू तो फॉल्स का यूनियन करांगे तो मेरे को की होएगा ट्रू होएगा। ठीक है, और इतने मेरे को फॉल्स से फॉल्स का करांगे तो मेरे को की होएगा फॉल्स विच इज़ फॉल्स, तो मेरे को फॉल्स आ गया। इतने दोनों का करांगे तो भी मेरे को फॉल्स आ गया। हमें तो बहुत औखा हो जाना है, फिर लंबा काफ़ी चला जाऊगा। कोई और वैल्यू लेके देखिए, दोनों की ट्रू, दोनों की ट्रू लेके देखांगे। हमें ट्रू आएगा, फिर तो एक ही राह रह जाता है जी, ट्रुथ टेबल, और ये राह ही नहीं कोई। चलो ट्रुथ टेबल बना लें हम आप। ट्रुथ टेबल जो बनावांगे तो P की वैल्यू ले लें सब तो पहला, तो दैट इज़ ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, उस तो बाद Q की वैल्यू लेना भी जरूरी है, दैट इज़ ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स। आपको पता है नेगेशन कढ़ना जरूरी है, नेगेशन ऑफ P की लोड़ होगी तो नेगेशन ऑफ P कढ़ के रख लें, दैट इज़ दिस। ठीक है, ये इक्विवेलेंट है तो इनू भी कढ़ के रख लो। ये अपने को की आ रहा कंजक्शन है दोनों का, ये मेरे को आ रहा है ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, इनू मार्क कर लो 1 या कुछ भी मार्क कर लो। ठीक है, चलो हुण अगर आप गल करिए अपने को देखो ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को एंड है। ठीक है, चलो पहला ए ऑप्शन ही लैके चलते हैं एंड है, क्योंकि हुण ये भी अपन अगर अपने को ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल नहीं चलता तो अपन बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल कढ़ना पैना है ना, क्योंकि दो ऑप्शन अपने को राइट आई जांदियां ने, तो कुछ तो करना पऊगा। तो आप पहला ए ऑप्शन लैके चलते हैं। थोड़ा सा लंबा चला गया है क्वेश्चन, होर कोई गल नहीं, 1 मिनट रुको जी। ये ऑप्शन अपन की कहती है कि अगर अपने को इसकी वैल्यू एंड है तो अपने को कुछ इस तरीके नाल बनेगा। ठीक है जी, नेगेशन ऑफ P और Q। चलो फिर करते हैं, देखी जाऊगी P एंड Q तो आप कढ़ चुके हैं। ठीक है, और अगर P एंड Q आप कढ़ चुके हैं तो आप नेगेशन ऑफ P और Q कढ़ लें, नेगेशन ऑफ P और Q कढ़ लें। ठीक है, नेगेशन ऑफ P और Q कढ़ांगे तो मेरे को कितना बन जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। ठीक है, और इन्होंने दोनों का यूनियन करना है 1 एंड 2 इंटरसेक्शन सॉरी, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो बिल्कुल सही है। आई थिंक सो हुण आपां नूं किते होर जाण दी लोड़ ही नहीं, अपना ए ऑप्शन ही सही आ गया, दोनों बिल्कुल ही सेम आ गए, तो मतलब अपनी किहड़ी ऑप्शन राइट हो जाती है, ए आ जाती है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ठीक है, तो पहला तो नगेशन देखो, सब तो पहला ਇਹਦਾ ਨਗੇਸ਼ਨ अंदर ले जाओ, मेरे को कितना बन जाएगा P एंड नगेशन ऑफ Q। ठीक है, P एंड R नगेशन ऑफ Q एंड R आ चीज़ बनेगी। ठीक है जी, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ P ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ P ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ एंड नगेशन ऑफ Q और R नगेशन ऑफ Q एंड R, यही चीज़ बन गई अपने कोल। हुण इस दे विच की किया जा सकता है, थोड़ा जिहा होर इसनूं सॉल्व करना पैना है। जेकर आप इन्हां दोनों नूं ध्यान नाल देखिए तो इन्हां दोनों दे विच जेकर नगेशन ऑफ Q जो है वो बाहर आ रहा है ना, तब मेरे को की बन जाता है नगेशन ऑफ Q बाहर कढ़ लैंदे आ, P नूं पहला बाहर रख के नगेशन ऑफ Q बाहर कढ़ांगे तो मेरे को R एंड R रह जाएगा। R एंड R जेकर आप सोल्व करांगे तो मेरे को की बन जाएगा P एंड नगेशन ऑफ Q एंड R रह जाएगा, इत्थे तो एंड है ही सी है ना, तो आ मेरे को आंसर आ गया। अदरवाइज ट्रूथ टेबल तो है ही, वो अकॉर्डिंग कर लो है ना, 4 ऑप्शन हो, ट्रूथ टेबल काफ़ी लंबा चला जाऊगा, तो यूज़ दिस मैथड। तो ये मेरे को की इक्वल आ जाता है, विच ऑप्शन इज राइट हेयर, ऑप्शन तो 4 के कोई भी नहीं हैगी, तो देखना पैना इनू होर करते हैं, थोड़ा सॉल्व करना पैना हो। जेकर आप ध्यान नाल देखिए तो ये मेरे को की बन रहा है, ये मेरे को बन रहा है P एंड R नगेशन ऑफ Q है ना, तिन्हों के एंड है, Q का नगेशन है, तो आई थिंक सो ए ऑप्शन आराम नाल अपना जो है आंसर आ रहा है, दैट इज़ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 66 के विच देखो कि दिता होया है, 3 स्टेटमेंट्स है अपने को P Q R द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द विच वन इज़ फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहते इन्होंने किहड़ी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू दसनी आपने देखो हूँ ध्यान नाल, अगर 66 क्वेश्चन देखिए इन्होंने आपने कहा कि अपने को आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, 3 स्टेटमेंट्स दित्तियां हुई ने, ट्रूथ वैल्यू दसनी आपने। हुण पहली दे विच आपां नूं पुछ लिया गया P एंड Q 5 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 192 विच इज़ ट्रू, कोई डाउट नहीं है, और एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज़ 35, बट उरे लगाता नॉट, ये तो फिर रॉन्ग हो गया ना, ये तो आप बिल्कुल सही ही कह रहे हैं, 7 तो 5 का एलसीएम तो 35 होंगे, तो यदा आंसर क्या आएगा मेरे को, यदा आंसर तो मेरे को 5 आएगा ना, सॉरी फॉल्स आएगा। ठीक है, यदा आंसर मेरे को क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, तो यह मेरे को की है रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, हुण एक इत्थे आप चैक भी कर लें कि 7 192 का फैक्टर है, 192 नूं जो 7 नाल डिवाइड करते हो तो मेरे को जाता है कि यह फैक्टर बनता है, नहीं बनता। ठीक है, तो ये मेरे को जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मेरे को फॉल्स है, ये स्टेटमेंट मेरे को ट्रू है, और ये स्टेटमेंट भी मेरे को ट्रू है। ठीक है, हुण तुसीं लगा लो हिसाब किहड़ा आंसर राइट होगा, तो ये हुण आपां नूं कढना सौखा हो जाएगा, नगेशन ऑफ ट्रू, नगेशन ऑफ फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, तो आई थिंक सो ये भी मेरे को की हो गया, फॉल्स हो गया, बट वी आर फाइंडिंग ट्रूथ वैल्यू, तो ये भी मेरे को रॉन्ग आंसर हो गया। ठीक है, सो ए ऑप्शन रॉन्ग, बी ऑप्शन रॉन्ग। ठीक है, तो ये मेरे को ट्रू सी, ये मेरे को फॉल्स सी, ये मेरे को ट्रू सी, ये मेरे को ट्रू है। हाँ जी, नगेशन ऑफ ट्रू करोगे तो मेरे को कितना आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, और आई थिंक सो फॉल्स, ट्रू, तो ये भी मेरे को ट्रू आ गया, ये तो मेरे को ट्रू बन गया, नगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स बन गया मेरे को, यूनियन। अच्छा ठीक है, इतने फॉल्स होएगा तो ये भी मेरे को फॉल्स बन जाऊगा, तो ये भी गलत हो गया, क्लियर है, डी ऑप्शन राइट होगी। ठीक है जी, करके देख लियो। क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 67 के देखो कि दिता हुआ है, अगर Q फॉल्स है, आ स्टेटमेंट मेरे को ट्रू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी, इन्होंने किहड़ी एक ट्रू होएगी। अगर Q की वैल्यू मेरे को फॉल्स है, ठीक है, और इसकी वैल्यू मेरे को ट्रू है, हुण अगर Q की वैल्यू फॉल्स है तो P कुछ भी होवे, P कुछ भी होवे, आ वैल्यू भी मेरे को की होएगी, फॉल्स ही होएगी, क्योंकि अगर एक वैल्यू फॉल्स हो जाती है
एंड दे विच तां आंसर अपना की आऊगा फॉल्स ही आऊगा सिंपल है ना। तो आ पूरी वैल्यू फॉल्स है मतलब तुसी एक फॉल्स वैल्यू दे नाल कुछ भी आर दा कढोगे तो थोड़ा आंसर की आ रहा है ट्रू आ रहा है। ये तो कदों पॉसीबल है तो उदों ही पॉसीबल है जो आर भी की होएगा फॉल्स होएगा। जो आर भी की जो दोनों फॉल्स होंगे तो ही पॉसीबल है। तो एक चीज़ पता लग गई जी पी मेरे को की होएगा कुछ भी हो सकता है ठीक है। आर की वैल्यू मेरे को की होएगी फॉल्स होएगी। आपने हुण दसना टोटोलॉजी टोटोलॉजी किहड़ी बनती है ये तो एक चीज़ पता लग गई पी का तो पता नहीं बट आर तो क्यू ये दोनों ही मेरे को की ने फॉल्स ने ठीक है। अगर ये दोनों ही फॉल्स ने देन अपने कोले किहड़ी ऑप्शन सही हो जाती है। हुण पी बारे तो आपां नूं नॉलेज है नहीं। फर्स्ट ऑप्शन दे विच देखिए जेकर आपां पी यूनीअन आर क्योंकि एक फॉल्स है तो कुछ भी आंसर हो सकता है ठीक है। इंप्लाइज एक फॉल्स दे नाल एंड है तो फॉल्स ही होएगा और अगर सेकंड ऑप्शन तुहाडे कोल फॉल्स है तो तुहाडा आंसर हमेशा की आएगा फॉल्स ही आएगा। ये भी कोई डाउट नहीं है ठीक है। बट आप ये बारे श्योर नहीं है ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो अपना आंसर ट्रू भी हो जाऊगा है ना। तो ये आप हाले कुछ नहीं कह सकते। इस दे विच देखिए तो ये मेरे को फॉल्स है ठीक है और ये मेरे को की है पी यूनीअन आर। अगर यह फॉल्स है देन यह ट्रू होएगा। चलो समझ आ गया किद्दां करांगे दोबारा देखो हुण देखो ये कहते क्यू की वैल्यू फॉल्स है। उम्मीद है ये चीज़ तो समझ आ गई होएगी कि अगर क्यू फॉल्स है तो इन्हां दा जिहड़ा एंड है वो भी पक्का की होएगा फॉल्स होएगा ठीक है। अगर इन्हां दा एंड फॉल्स है तो इन्हां दा जिहड़ा और है वो की होएगा ट्रू होएगा। आ चीज़ अगर तुहानूं समझ आ गई तो मतलब तुहाडा क्वेश्चन हो गया ठीक है। चलो उस तो बाद क्योंकि इन्हां दा एंड फॉल्स है तो जो किसी भी फॉल्स वैल्यू के लिए तुसीं डबल इंप्लाइज करते हो और आंसर तुहाडा फॉल्स आता है तो तुसी एक चीज़ के वास्ते क्लीयर हो जाते हो भी इनू भी की होना पएगा फॉल्स ही होना पएगा। तो इतों पता लग जाता है कि आर जो है वो भी मेरे को की है फॉल्स है क्यू जो है वो भी मेरे को की है फॉल्स है। तो आ कुछ वैल्यूज़ ने जिहड़ियां तुहानूं पता लग गई और इन्हां दे सिर ते ही आपां ने हुण क्वेश्चन करना। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्योंकि यह वैल्यू अपने को की है ट्रू है ट्रू इंप्लाइज फॉल्स करांगे तो ऑब्वियसली मेरा आंसर की आएगा फॉल्स आएगा बट वी आर फाइंडिंग टोटोलॉजी सो ए इज़ नॉट द राइट आंसर ठीक है। अगर आप ध्यान नाल देखिए पी यूनीअन क्यू पी यूनीअन आर बारे आपां नूं कोई नॉलेज नहीं है बट ये बारे आप क्लीयरली बोल सकते हैं कि ए जो है अपने को पी एंड क्यू पी एंड आर सॉरी पी एंड आर इत्थे सॉरी आर होएगा आर ही होएगा ना आर हाँ आर होगा ठीक है। अच्छा ठीक है फिर तो हो ही जाएगा। इतने मैं बाय मिस्टेक क्यों लिखता सी आर आएगा तो इसमें थोड़ा सुधार लियो। पी यूनीअन आर मेरे को की होएगा ट्रू होएगा पी एंड आर मेरे को की होएगा फॉल्स होएगा। लास्ट ऑप्शन दे विच देखो जी लास्ट ऑप्शन दे विच की है ये बारे हले आप 100% श्योर नहीं है क्योंकि ये वास्ते चौथे टेबल बनाना पऊगा है ना बट जिहदे बारे आप 100% श्योर आप उहदे बारे चलांगे तो ऑलवेज 100% थोड़े को ये आंसर आऊगा क्यों क्योंकि पी एंड आर अपने को अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो ओबवियसली कुछ भी कर लो थोड़ा आंसर ट्रू ही आऊगा क्योंकि ये थोड़े को ट्रू फॉल्स गिवन है थानू ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो की होएगा ऑप्शन डी। मैं कुछ गलती लिखी है इतने मैंने ट्रू गिवन सीगा हे भगवान फिर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ वैल्यू तो मैंने ट्रू दी हुई है मैं होर यूज करता। देखो दोबारा दिमाग लगाने जैसे लास्ट विच करते हैं हम मेरा दिमाग हिल गया इस नहीं मैं कर सकती दोबारा लास्ट इसनों डिस्कस करते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखो क्वेश्चन नंबर 68 के विच दिता हुआ है कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल दैन देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल। कहते अगर दो नंबर्स इक्वल नहीं है कि दोनों के स्क्वायर्स इक्वल नहीं होंगे। ये मेरे को पी स्टेटमेंट है ये मेरे को क्यू स्टेटमेंट है एंड वी हैव गिवन कि अगर मेरे को कॉन्ट्रा पॉजिटिव तुसीं फाइंड करना है तो दोनों का नगेशन करना पऊगा नाले उल्टाना पऊगा। तो आ मेरे को की होएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव होएगा। पहला तो अगर दोनों का स्क्वायर इक्वल है क्योंकि नॉट गिवन सीगा तो नॉट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव की होगा अगर स्क्वायर इक्वल है इफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स आर इक्वल इफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स आर इक्वल तो जो नोट वाली दो ऑप्शनस ने इन्होंने तो हुणी कट दो ठीक है।
उस तो बाद देन negation of p, negation of p की कहता है then the two numbers are equal, the दो numbers भी equal होंगे, so b is also not right, a is the right answer। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, if this value is equivalent to, ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਰੂਥ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟਰੂਥ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਕੋ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਸਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 70 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਟੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਐਫ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਲਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੋਲਸ ਦਾ ਨਗੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਟਰੂ ਦਾ ਨਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਫੋਲਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਲਸ ਐਂਡ ਟਰੂ, ਤਾਂ ਫੋਲਸ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਰੂ ਐਂਡ ਫੋਲਸ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਲਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ट्रू एंड सॉरी फॉल्स एंड फॉल्स, तो ये तो कैंसिल हो गई, नहीं ये भी मेरे को फॉल्स ही आ रहे हैं, सारे ही आ रही जाते हैं। और ये मेरे को आ जाएगा ट्रू एंड ट्रू, चलो एक कैंसिल हो, शुक्र है कि तो कैंसिल हुई। हुण इस दे विच दोनों दी वैल्यूज ट्रू लै लो, तो इत्थे मेरे को फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, मेरे को कितना होंदा ट्रू, तो भी आंसर मेरे को कितना होएगा, फॉल्स होएगा। ठीक है, तो हुण इन्हां तिन्हां दे विच देख लैंदे आ, ये मेरे को बन जांदा है ट्रू एंड फॉल्स विच इज़ फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। हे भगवान, दोनों सेम लईए, सेम ले लेने, अलग अलग लईए, जो टेबल ही बना लीए, टेबल बना के मैं कहनी ज़्यादा ईजी हो जाऊगा। है पी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, गेम लगन लग गई बनता है बोर्डिंग जी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, नेगेशन ऑफ पी कितना हो जाएगा जी थोड़े को, ट्रू फॉल्स सॉरी फॉल्स फॉल्स, इन्होंने आप सही कर लेने विच इज़ ट्रू। ठीक है, और इतने भी मेरे को की आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इस तो बाद नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू मेरे को कितना होएगा जी, ट्रू 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 फॉल्स। ठीक है, यदा भी अगे नेगेशन करना है, नेगेशन ऑफ वन इन वन का नाम ले लो, तो मेरे को की आंसर आ जाएगा, मेरे को आंसर आ जाएगा फॉल्स 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 ट्रू। तो देख लो कि इक्वल आता है, पहला तो पी एंड क्यू कर लो, क्योंकि डी ऑप्शन तो अपनी एलिमिनेट कर ही दी, तो पी एंड करांगे तो मेरे को कितना बन जाएगा, पहले ही ट्रू, तो मतलब ये भी राइट आंसर नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन देख लो, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, है ना, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू मैं नाल ही लिख देनी है, टाइम सेविंग हो जूगी। आ मेरे को नेगेशन ऑफ क्यू है, दोनों का एंड करांगे तो मेरे को कितना आ जाएगा, फॉल्स 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 एंड ट्रू। आई थिंक सो बिल्कुल सेम आ गया, तो क्लियर है कि मेरा राइट ऑप्शन केड़ा होएगा, ए ऑप्शन होएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो जी कि दिता होया है, द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ यू बॉर्न इन इंडिया दैन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर तुसी बॉर्न हो इंडिया दे विच इज़ पी स्टेटमेंट, then you are statement citizen of India which is Q statement। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ P implies Q, ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰਾਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਟਰਾਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, negation of Q implies negation of P। मतलब अगर ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਨॉट ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਟਟੋਲੋਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਟੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਟਰੂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਟਰੂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਟੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀ ਐਂਡ ਕਿਊ, ਪੀ ਐਂਡ ਟਰੂ ਐਂਡ ਟਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਟਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਟਟੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, मतलब एक बार आप चेक कर रहे हैं, तो इसनों आप कैंसल नहीं करांगे, हाले रखते हैं। सैकेंड दे देखो जी, सैकेंड दे मेरे को आ जाएगा ट्रू इंप्लाइज फॉल्स एंड ट्रू, मेरे को ट्रू आ जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो कैन बी टटोलॉजी। ठीक है, ये मेरे को बन जाएगा ट्रू इंप्लाइज ट्रू, दैट इज़ ऑल्सो कैन बी टटोलॉजी। ये मेरे को बन जाएगा ट्रू इंप्लाइज
ट्रू एंड फॉल्स का की होएगा ट्रू। ट्रू इंप्लाइज ट्रू यूनियन फॉल्स। सारे ट्रू ट्रू आ गए तो मतलब अपन टेबल बनाना पैना। दैन टेबल बनाना पैना। टेबल बना लें हूँ आप लंबा पागे ट्रू फॉल्स लैके देखिए जेकर आप ट्रू एंड फॉल्स ट्रू ट्रू एंड फॉल्स ट्रू फॉल्स तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स और ट्रू मेरे को है फॉल्स, ये भी मेरे को है ट्रू, ये भी मेरे को ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इतने मैं पी की वैल्यू ट्रू पुट करके चेक कर रही हूँ और क्यू की वैल्यू फॉल्स पुट करके चेक कर रही हूँ तो मेरे को आ जाएगा ट्रू इंप्लाइज ट्रू दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। अगर आप इतने देखते हैं तो मेरे को बन जाता है ट्रू इंप्लॉयज ट्रू यूनियन ट्रू। टोपोलॉजी वाला केड़ा होएगा, दोनों सेम पुट करके भी आ रहा है, दोनों रॉन्ग पुट करके भी आ रहा है, डिफरेंट पुट करके भी आ रहा है। लास्ट ऑप्शन बट नॉट द लीस्ट यही है जो सारे क्वेश्चन में सॉल्व करती है। ट्रूथ टेबल ट्रू फॉल्स। ठीक है जी, क्यू की वैल्यू ले लो, क्यू की वैल्यू लोगे ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, और अगर आप इतने ध्यान नाल देखिए तो मेरे को कितना बन जाएगा। पहला आप नगेशन फाइंड कर लेने दोनों के, नगेशन ऑफ पी एंड नगेशन ऑफ क्यू। तो अपने को आ जाता है नगेशन ऑफ पी कढ़ लो, कितना आएगा जी मेरे को फॉल्स ट्रू एंड दिस इज़ फॉल्स ट्रू एंड ट्रू। हुण देखो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के मेरे को एंड दिता होया, एंड इंप्लाइज एंड तो और दोनों ही कढ़ लो, एंड कढ़ोगे तो मेरे को कितना आ गया ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, और कढ़ोगे तो कितना आ गया ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू, मैं डी ऑप्शन चेक कर रही हूँ, पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू और ट्रू false true and true। this is 1, this is 2, 1 implies 2, true false true। सो ये अपने को पूरी तरह टोटोलॉजी नहीं हैगी तो डी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, नहीं फिर थोड़ा चारां दे जो है बना के देखने पैणगे, सो इन्ना तो करना पैना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, दो स्टेटमेंट्स दिखती हुई हैं। ठीक है, नगेशन एदा नगेशन फाइंड करना है, नगेशन फाइंड करांगे नगेशन ऑफ पी एंड दो बारी नगेशन हो जाएगा पी यूनियन नगेशन ऑफ क्यू, यही आंसर आऊगा। ठीक है जी, हुण इस देख लो अपने को अगे किहड़ा आंसर आ जाता है। जेकर इनू आप कल्ले कल्ले नाल लिखते हैं क्योंकि इदा कोई आंसर अवेलेबल नहीं है, कल्ले कल्ले नाल लिखते हैं तो बिल्कुल की बन जाता है, एक तो आ चीज़ बन जाती है। ठीक है, और एक मेरे को बन जाता है आवला नगेशन ऑफ पी एंड नगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, ये तो मेरे को क्लियर ही है कि फॉल्स ही होएगा हमेशा और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ही होएगा हमेशा, तो ये मेरे को कुछ इस तरीके नाल रह जाता है। तो अगर तुसी किसी का भी फॉल्स के नाल यूनियन करोगे है ना, अगर तुसी फॉल्स का
ट्रू अगर देखो फॉल्स का ट्रू नाल यूनियन करते हो तो थोड़ा आंसर यही आता, सेकंड वाले के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो ओबवियसली थोड़ा आंसर की होएगा सेकंड वाला ही होएगा। अगर तुम सेकंड वाला फॉल्स लै लें तो थोड़ा आंसर फॉल्स आएगा, अगर तुम ट्रू लै लें तो ट्रू आएगा। तो क्लीयर है कि मेरा आंसर कि ऑप्शन आ गई है, ये डी ऑप्शन आ गई है विच इज़ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन के दिता हुआ है, अगर ये थोड़े को फॉल्स है तो ये भी थोड़ा बाई ऑप्शन जाना पैना। देखो जी फर्स्ट ऑप्शन अपन की दी हुई है कि पी की वैल्यू फॉल्स है, बाकी दोनों ट्रू ने, तो फॉल्स इंप्लाइज ट्रू विच इज़ ट्रू, बट मैंने तो फॉल्स चाहिए तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और अगर अपन सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो मैंने की दिता हुआ है ट्रू इंप्लॉयज, दोनों ही फॉल्स ने, तो फॉल्स है, मेरे को राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 कहते इन्होंने केड़ा है जो एक टोटोलॉजी है, विच वन ऑफ द बुलन एक्सप्रैशन इज टोटोलॉजी। तो ये भी टोटोलॉजी फाइंड करनी है, तो वही है टेबल बना के करना पैना, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, तो ये थानू करना पैना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 कमेंट सैक्शन के जरूर दस्यो भी केड़ा आंसर राइट सीगा। द नगेशन, एदा नगेशन फाइंड करोगे, देखो नगेशन ऑफ नगेशन एस, नगेशन आर एंड एस। ठीक है, हूँ क्योंकि नगेशन चलो चला जाएगा अंदर तो यह मेरे को नगेशन खत्म हो जाएगा, और जो है वो एंड कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर भी नगेशन लगूगा, तो करके मेरे को की बन जाएगा आर और नगेशन ऑफ एस। ठीक है, तो हूँ इनू भी थोड़ा बहुत सोल्व करना पऊगा, एस कले कले ना लिखांगे एस एंड आर, एस एंड नगेशन ऑफ एस, ए फिर मेरे को ही बन जाएगा, तो मेरे को जस्ट ए वाला आंसर आ जाएगा विच इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 77 भी की है, कहते द ट्रुथ वैल्यू, यदा आंसर की आया है ट्रुथ सॉरी फॉल्स आया है। ठीक है, अगर यदा आंसर फॉल्स आया तो कि पुट करिए पी इंप्लाइज नगेशन ऑफ क्यू और आर। ठीक है, तो पहली पुट करते हैं तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो यदा तो मेरे को ट्रू हो जाएगा, तो मैनू की चाहिए फॉल्स चाहिए वैल्यू, तो ए ऑप्शन का राइट नहीं हैगी। बी ऑप्शन पुट करके देख लो, सी करके देख लो, डी करके देख लो। हम जो बी ऑप्शन पुट करांगे तो मेरे को की आ जाएगा, इत्थे ही कर रही हाँ मैं, बी ऑप्शन पुट करांगे तो मेरे को कितना आ जाएगा ट्रू इंप्लाइज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो मेरे को ट्रू बन गया, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, तो मेरे को ट्रू होंगे, बट मैनू की चाहिए है, मैनू फॉल्स चाहिए है, तो बी ऑप्शन भी राइट नहीं हैगी। अगर बी भी राइट नहीं हैगी तो सी के उपर चलते हैं, सी के मेरे को ट्रू इंप्लाइज फॉल्स यूनियन फॉल्स, तो ये मेरे को की आ गया ट्रू आ गया। ठीक है, मतलब फॉल्स आ गया, तो सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 78 कहते ये जो है वो किस दे इक्विवेलेंट है। पहली गल तो अपन सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जो पी इंप्लाइज क्यू है वो मेरे को नगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू के इक्वल होंदा है। ठीक है, क्योंकि इतने तो सानू नगेशन ऑफ पी इंप्लाइज नगेशन ऑफ क्यू दिता होया, तो मेरे को किहदे इक्वल होएगा पी यूनियन नगेशन ऑफ क्यू के इक्वल होएगा। ध्यान नाल देखो है ना, तो जेकर तुसीं ध्यान नाल देखोगे तो आंसर की आ जाता है फिर अपने को, ये तो कितने भी अवेलेबल नहीं हैगा। अगर यह कितने भी अवेलेबल नहीं हैगा तो अपन थोड़ा बहुत चैक करना पैना है कि किहड़ी वैल्यू ये राइट है, मतलब कि ये दोनों तो नहीं आती, ਜਾਂ यूनियन हो सकती है ਜਾਂ एंड हो सकता है, तो ये आप वैल्यू बना के कर सकते हैं। अगर तुम ये वैल्यू ट्रू लैने हो और ये वैल्यू पी की वैल्यू ट्रू लैने हो और क्यू की वैल्यू तुम फॉल्स लैने हो, तो थोड़े को आंसर की आ जाता है ट्रू आ जाता है। ठीक है, और ट्रू फॉल्स लैन के उपर कितने तो आंसर जो है ट्रू होएगा। अच्छा एक मिनट, सारे का नगेशन है, रुको फिर इसमें आप दोबारा करते हैं। ये आपको पहला तो जस्ट इन्नी चीज़ चकनी पेगी, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिता। पी इंप्लाइज क्यू अपने को किहदे कोल हुंदा नगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, इत्थे आपको दिता है पी इंप्लाइज नगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो मेरे को कितना आ जाएगा नगेशन ऑफ पी यूनियन नगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, हुण इसका सारे का नगेशन है, तो इसका सारे का की होएगा नगेशन होएगा। ठीक है, विच इज़ पी यूनियन क्यू, सॉरी पी इंटरसेक्शन क्यू। तो ये थोड़ी जी गलती रहेगी सी, उसको ध्यान नाल देखियो। ठीक है, तो इतने अपना ऑप्शन केड़ा आ जाता है डी आ जाता है। ठीक है, हुण चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के विच इज़ क्वेश्चन नंबर 67 सीगा वो, हाँ ये सीगा 67। ठीक है, हुण इस क्वेश्चन के आप देखते हैं, हुण ध्यान नाल की दिता होया है, ये अपने को क्या होया है कि अगर तुहाडे कोल क्यू फॉल्स है, ठीक है, पहला आप ये थोड़ी जी गलती छड़ गई सी, आप इसनूं फॉल्स लै लैके करिए, बट अपना आंसर क्या आना चाहिए ट्रू आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, क्यू की वैल्यू अपने को की है फॉल्स है,
ठीक है। तो अपने को P एंड Q मेरे को की होएगा, P एंड Q मेरे को की होएगा फॉल्स होएगा। क्लीयर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ डाउट नहीं है क्योंकि एक भी फॉल्स हो जाए तो फॉल्स ਹੁੰਦਾ एंड ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्या ਹੋਇਆ है कि ਇਹ जो भी है विच इज़ फॉल्स, ਇਹਨੂੰ डबल इंप्लॉयज करते हैं आर ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ है, ट्रू आंदा है। ठीक है जी, अगर अपने को आर ट्रू आंदा है तो मतलब आर की वैल्यू मेरे को की होएगी, फॉल्स होएगी। आर की वैल्यू मेरे को की होएगी, फॉल्स होएगी। ठीक है, और P एंड Q जो है वो भी मेरे को की होएगा, फॉल्स होएगा। तो आ तीन चीज़ा अपन पता लग गई तो। ठीक है, चलो हम थोड़ा जा अगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आ तीन चीज़ा पता लग गई, Q फॉल्स है, आर फॉल्स है, P एंड Q भी मेरे को की होएगा, फॉल्स होएगा। उस तो बाद नैक्सट अपने को की हो जाता है P, अगर अपने को ध्यान नाल देखो आर की वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, अगर अपने को आर की वैल्यू फॉल्स है तो जेकर मैं आर नू P नाल किसी नाल भी, नॉट ओनली P, किसी नाल भी इंटरसेक्शन करूँगी तो इतने तो हर जगह P नाल ही है, तो आप P नाल लैके चलते हैं तो वह भी मेरे को की होएगा, फॉल्स होएगा। ठीक है, वो भी मेरे को की होएगा, फॉल्स होएगा, क्योंकि एक फॉल्स हो जाए तो मतलब इंटरसेक्शन एंड दे विच की हुंदा है, फॉल्स ही हुंदा है। आपां ने की फाइंड करना है, टोटोलॉजी फाइंड करना है। टोटोलॉजी फाइंड करने दे विच एक चीज़ का पता लग गई कि जी सी ऑप्शन है वो फॉल्स है। ठीक है, सी ऑप्शन फॉल्स है तो मतलब अपने को देखो हुण इत्थे पिछे फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इत्थे पिछे फॉल्स आ जाएगा तो मूहरे बारे आपां नूं कोई नॉलेज है नहीं, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो ये बारे भी आप कुछ नहीं कह सकते है ना। तो इत्थे जेकर आप ध्यान नाल देखिए इत्थे मूहरे फॉल्स आ जाएगा। अगर मेरे को P एंड R फॉल्स है, ठीक है, अगर मेरे को P एंड R फॉल्स है, रिजल्ट तो आप लगाए ही नहीं कि मेरे को की होएगा, ट्रू होएगा। देन अपने को इतने ट्रू तो फॉल्स, ए भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाती है तो डी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर अपने को ए ऑप्शन भी तो आ सकती है, बट हर जगह तो नहीं होएगी। आर की वैल्यू जिथे ट्रू हो गया, ठीक है, ठीक है, तो ये ऑलवेज होएगा। ठीक है, दोनों के बीच यही डिफरेंस है, ये ऑलवेज होएगा, ये ऑलवेज नहीं होएगा। ठीक है जी, क्योंकि चार होंगे तो चारों के ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। अपन पता है और दे विच सारे ट्रू या सारे फॉल्स नहीं होंगे। ठीक है, और ये क्लीयर है कि अपने को ऑलवेज होएगा, तो क्लीयर है, इसका आंसर की होएगा डी ऑप्शन। ठीक है जी, ये नाल ही अपना यही टॉपिक कंप्लीट होंदा है विच इज़ मैथमैटिकल रीजनिंग। इस तो बाद LPP करांगे, उस तो बाद 4 टॉपिक रह जाएंगे अपने, नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, डायनामिक्स। ठीक है, जिहदे विच मकैनिक्स एंड डायनामिक्स, मकैनिक्स बोल लो। ठीक है, स्टैटिक एंड डायनामिक्स सारे आते हैं। तो इस तो इलावा एक होर केड़ा टॉपिक है, वैक्टर स्पेस। आ 4 रह जाएंगे। ठीक है, और बस आही 4 टॉपिक, एक LPP है, LPP में देखूँगी 1-2 क्लासेस के कवर अप हो जाना अपना। ठीक है, स्टिल अगर क्लास पसंद आई दैन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थोड़ा सा वेट करो, नैक्सट वीक तो आप मैराथन्स लगावांगे, तो वो लिए थोड़ा थोड़ा वेट करना पैना। तो लेट्स इट। ठीक है, फिर कोई भी डाउट होया तो कमेंट सैक्शन में पूछ सकते हो, एंड शेयर, लाइक, सबसक्राइब जरूर करो। थैंक यू।